Good afternoon, friends. ANTF has started tightening the noose on the drug cartels of J&K UT. We have got frozen 5 accounts of drug cartels which were being run from Kashmir Valley, and the head of this cartel was Masood Ahmad Dar. These 5 accounts, total amount which has been frozen is 54 lakh and 27,000, and all this amount has been proven to be proceeds of narcotics. This is a first of its kind case. The process of getting accounts frozen is whenever we prove during the course of investigation that such accounts belong to the people who are running drug cartels and all this amount is the proceed of narcotics, it has to be proven beyond reasonable doubts. And once it is proven, then the case goes to SAFEMA, which is the appellant and competent authority. The full form of SAFEMA is Smugglers and Foreign Exchange Manipulation Act 1976. That is the competent authority which runs its office from Delhi. The case goes to SAFEMA, and proper right to be heard is given to the accused persons. They were given proper right to be heard. However, the IO of the case, Mr. Parvez Sajjad, has proven it beyond reasonable doubts that all this amount has been the proceeds of narcotics, and hence the orders of freezing were given and confirmed by SAFEMA. So we have been working against these cartels for last more than 6-7 months. The two ends of these cartels were, they were working in close liaison with their Delhi counterparts. We have arrested 2 big suppliers from Delhi. One is Salman and Amit Saxena, who were pumping pharmaceutical drugs to Kashmir Valley, and another person, Jahangir, who was transporting the drugs from Kashmir to other parts of the country. All these 3 persons have been arrested. So now on, we shall be targeting the accounts and money of these drug cartels, because this money is their strength and this is the purpose for which they are running this business. Through your medium and this PC, we shall be giving a very stern warning to all those persons who are involved in this kind of illicit business of drug trade. Whosoever is cultivating, transporting, manufacturing, smuggling, and those people who are drug peddlers, all these persons have been kept under watch. We shall be scrutinizing their accounts. Their movable, immovable properties shall be properly investigated, and very shortly you will see that their properties get confiscated and forfeited. Thank you so much. मित्रों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुद्दा ये है कि हमने जो ड्रग कार्टल्स जो जम्मू कश्मीर से ड्रग्स का रैकेट चला रहे थे, उनके हमने 5 बड़े अकाउंट्स फ्रीज़ करवाए हैं, जिसमें कुल मिला के 54 लाख और 87,000 रुपये हमने फ्रीज़ करवाए। इसमें जो ड्रग कार्टल था, इसका सबसे बड़ा जो सरगना है मसूद अहमद डार, सन ऑफ अब्दुल रहीम, बिजबहरा अनंतनाग का रहने वाला ये आदमी जो इस रैकेट को चला रहा था। इसके अकाउंट से इसका जो तरीक़ाकार रहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन में ये साबित करना होता है कि ये सारे का सारा पैसा जो है, ये सारा आमदनी है, ये ड्रग्स के बिजनेस की आमदनी है। एक बार ये साबित हो जाए तो केस जो है वो साफेमा को चला जाता है। साफेमा की मैं पूरी फॉर्म आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट, ये एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो दिल्ली में बैठती है, ये इसकी सुनवाई करती है। दूसरी पार्टी जिसके अकाउंट्स फ्रीज़ होते हैं उनको वहाँ सुनवाई का पूरा मौका मिलता है। उन्होंने अपनी दलीलें दी, और दूसरी तरफ से जो आईओ है उसने ये बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट किसी भी शक के परे इसको साबित कर दिया कि ये सारे का सारा पैसा ड्रग्स के बिज़नेस से कमाया हुआ पैसा है, और साफेमा ने हमारे ऑर्डर्स जो रिक्वेस्ट थी फ्रीजिंग की उसको कंफर्म कर दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जेके यूटी में कि इस तरह के अकाउंट्स फ्रीजिंग के जो कार्रवाई है ये होना शुरू हुई है। हमने जितने भी ड्रग कार्टल्स हैं, जो बड़े इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का बिज़नेस चला रहे हैं, इलिसिट बिज़नेस चला रहे हैं, अब उनके अकाउंट्स स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिए हैं। हमने उनकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके डिटेल्स लेना शुरू कर दी हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से, बाकी अथॉरिटीज़ से, और बड़ी जल्दी इन लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉन्फिस्केट होंगी, उनकी कुर्की होगी और फॉरफीचर होगा। मैं आपके माध्यम से बड़ा एक स्टर्न वार्निंग इन लोगों को देना चाहता हूं कि बड़ी जल्दी इनका जो पैसा है
और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इनका सबसे बड़ा मकसद है और जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है, हम इनके मकसद और ताकत पर सीधा प्रहार करने जा रहे हैं और हमें लगता है इससे इनकी कमर टूटेगी। आप सबके सहयोग की हम कामना करते हैं। थैंक यू। सर, ये अमाउंट अभी बहुत बड़ी नहीं है, ये ड्रग्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। आने वाले समय कुछ ज़्यादा अमाउंट भी इससे जुड़ी हुई हो सकती है सामने? ये अभी हमने बताया, अभी ये सिर्फ एक आदमी का अकाउंट है, मसूद अहमद डार जो है, जो बिजबिहारा का रहने वाला है। एक आदमी के अकाउंट से 54 लाख हमने अभी फ्रीज़ करवाया है। ये अपनी नवीयत का पहला ऐसा केस है और ये केस एक ट्रेंड सेटर के तौर पर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं और ये एक केस बेस्ट प्रैक्टिसेस में सारे पुलिस स्टेशन, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को सर्कुलेट होगा कि ये एक तरीकाकार है। इन लोगों की प्रॉपर्टीज़, इन लोगों की जायदाद जो इलीगल तरीके से इन्होंने बनाई हुई है, उस पर प्रहार करने का तरीकाकार एक प्रेजेंटेशन, उस मकसद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्या कोई जम्मू का लिंक इनके साथ कोई जुड़ा है अभी तक? क्योंकि कश्मीर और जम्मू के थ्रू ही बाकी देश में जाता है ड्रग्स को। जम्मू ये वो कार्टेल था जो यहाँ से कश्मीर से आशीष जो है, हाशीश जो है, ये बाकी पार्ट्स ऑफ कंट्री जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते थे और रिवर्स ये इनका नेक्सस था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ, और इंडस्ट्रीज से वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इनका नेक्सस, और वहाँ से ये लोग आगे कश्मीर में ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे और जो यूथ है उनकी जो सेहत है, उनकी जो ज़िंदगी है, उसके साथ खिलवाड़ करते थे। इन लोगों के साथ इस तरह का पेश आना हमारे लिए एक गौरव का विषय है और हम इस तरह के और एग्जाम्पल सेट करना चाहेंगे। सर, फॉर्मली कितने लोग अरेस्ट हुए और अभी कितने लोग पाइपलाइन में जिनके आप फोकस कर रहे हैं? मसूद अहमद डार के खिलाफ 3 पर्चे हैं। ये एब्सकॉन्ड कर गया है और इसीलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे हम हमला कर रहे हैं। इस कार्टेल के हमने 3 बड़े लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, सप्लायर्स थे, वो हमने गिरफ्तार किए हैं। हमने पहले भी बताया, सलमान और अमित सक्सेना जो दिल्ली के फार्मास्यूटिकल रैकेट के बड़े नाम थे, जो जम्मू कश्मीर में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को पंप कर रहे थे और यहाँ के यूथ की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी तरह से जहांगीर नाम का जो एक आदमी जो कश्मीर से ड्रग्स, हशीश, पॉपी, स्ट्रॉ वगैरह बाकी पार्ट्स ऑफ कंट्री, देश के अन्य राज्यों में जो उसको ट्रांसपोर्ट करता था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।